remembering very much. I will say, oh, you are remembering me. But one thing I want to ask. Remembering means calling. When you are remembering me, then why you were not feeling that I am there? What is the meaning of remembrance? As our son is in America, you are remembering. You will feel that you are very near to. You will feel that he is in America. America you will forget, or you will feel very near. So no place, no distance is there. But you search him with distance. You will always feel the distance. When you will feel that he is mine, he is with me, you will feel that he is with me. Is it only abhyas? Eh? Is it abhyas that changes the thought into feeling? Ma? Changes of thought. Because we start with the remember. This connection is from the thoughts. Thoughts will be clean. But feeling of nearness, this is the result. Result of constant remembrance. So constant remembrance ultimately leads to constant presence of Babaji Maharaj. Yes. Feel the feeling of presence. Feeling the transmission, is it a sign of feeling the presence of Babaji Maharaj? Transmission means the wave. The oxygen is everywhere, we are not feeling. But it works. Working is going on. So, if you are feeling the transmission, it means that you are getting the prasad. When we remember that oxygen is coming, then you feel, oxygen is coming, so I am living in this field. But feeling, you are here. And he is here. I wrote to Babaji Maharaj in a letter that I forgot the name of Shagan. Because whenever I remember you, you are before me. So I forget the name of Shagan. Babaji Maharaj answer was, nowadays I am feeling very much happiness. Because when I remember you, I feel that I am at Modi Nagar before you. At that time I was at Modi Nagar. So I am feeling that I am at Modi Nagar before you. This shows that the time is now for you. If you feel nearer and nearer, then you will begin to feel dearer and dearer. Because divine is everywhere. All are telling, all are thinking, and they are saying, but no one is feeling. So Babaji said, reality, remember reality.
The divine is here. Don't wait. Then when I will remember you there. No, he is here. Now I can understand the meaning of one sentence of Babaji Maharaj. So many times he was telling that I am yours. I am feeling that I am yours. And you are sitting before me. And you are not feeling that I am yours and you are mine. There is connection, but we will feel that he is our son. Body. We only belongs to the relationship with the body. But God has no body. He sang when people begin to forget. Then he sent someone with the body. So first they attract from the body. Then they will begin to think, feel about divine is there. It is nature's work. Abhyasi word. This word is very nice word and very connected with the divine. Abhyasi, I wrote in my book. Then we begin from three sittings, meaning, and so in the prayer. It means we have joined the spiritual Sahaj system. This is our system that I am for morning meditation, evening prayer. You see, we joined the system. But in the prayer, first line, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का भी बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति संभव लास्ट I am surrendering you ourselves to you. From the day when we begin to, I am surrendering ourselves to you. As you like, you prepare me to be. When my sisters very well going on, then I wrote a letter to Babaji Maharaj. Now I can feel the difference of happiness of the bodily thing and divine, and remembrance of you, divine. In the bodily thing, mind became very happy and very busy in all the work. But in the same way, when we begin to feel you in us, that happiness never goes. After marriage, you will begin to forget all the happiness. But this, whenever you are working and whenever you will feel, your attention will go and feel that wow, you are. This happiness never goes. वहाँ पे हॉस्पिटल में
बहुत लोग, बहुत शिष्य थी, ये नर्सेज वगैरह, 2 डॉक्टर भी थे, एक नर्स, 4 ही थी। लेकिन उनको ये मालूम था कि मतलब हम सैनमार सिस्टम को फॉलो करते हैं और श्री रामचंद्र मिशन के, तो वो तो यही जानती थी कि चारी को बिलोंग करती। और रोज आती थी मेरे दवा ववा देने के लिए। तो एक बार उसने पूछा कि आप तो इतनी बड़ी हैं पूजा में, पूरा बीमार कैसे हो गई? हमने कहा बेटा इसलिए कि हमने कभी इसलिए पूजा नहीं करी कि हम कभी बीमार ना हो। जिसने पूजा करी थी वो मर गया। बहुत जानकारी है। बोले कि वो विस्पर्स कोई किताब है, उसमें वो लिबरेटेड सोल से बात करते हैं। तो लिबरेटेड सोल्स में कभी चार्ली की वाइफ सुमित्रा से बात होती है, तो कहते हम बहुत मतलब लकी है जो हमें ऐसा हस्बैंड मिला है, ये सब। और पिताजी उनको कहते हैं कि हमारा सन ऐसा है, हमको मिला है, तो ये सब वो बता देंगे। तो हमने कहा कि तुम अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन कंडीशन के हिसाब से रॉन्ग। लीव कैसे? हमने कहा कि कंडीशन के हिसाब से। Perhaps when I started meditation after 3 years, I wrote to Babuji Maharaj that I am telling, my mouth is telling, Amma, Pitaji, brother, sister. But there is no feeling. Who is mother? Who is father? Who is brother? Who is sister? There is no feeling. And being liberated souls, when this world, I am living in this world, I am not feeling the connection with their relation, and they are feeling the relation. So what is the meaning of liberated souls? It means you are involved with the relation. Then I said, when Sarvesh mother dies, then his daughter, Babu's daughter, came to me and she said, Babuji, his sister, tell to Babuji Maharaj that I want to hear our mother's voice. Then so I asked Babuji Maharaj. Babuji said, they knows that she is my mother, but she forget that they are their daughter. So because these relationship only goes in the world. After you were in the world before this life, but you forget all the relation because that relation was from that body. And liberated soul means who is, there is no relationship with soul. Liberation means the soul become light in the divine. So soul is nothing. Then what is the meaning of connection? मैं तो कहा अच्छा क्या होता है, एक ही कंडीशन बताइए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
क्योंकि डेली रूटीन सा बन गया, लेकिन अब उसमें चेंज थॉट का है ना, बढ़िया समय है बाबू महाराज के समय में, तो उस चीज से थोड़ा ऊंचे हो जाए तब फीलिंग दूसरी हो करते हैं। लेकिन अगर एक थॉट लेके करिए अपने बाबूजी की याद करें, अपने बाबूजी की, तो इसका वो बढ़ जाता है। भाव से सामिप्यता निकल किसी नियरनेस। लेकिन बस यही है कि कभी यही सोचते हैं हम लोग तो एक आदमी और वो तो वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं ये सोचते थे, लेकिन करने की कोशिश करना चाहिए, कोशिश जरूर करना चाहिए कि जितना कर सके। अब फादर देखिए पहले जैसे शुरू नहीं करा कि करने में तो थोड़ा आते ऐसे, अब वो बात भी सुनेंगे और जितनी बार वो होगा अपने आप आते हैं। तो ऐसी चीज है ये कुछ कि बहुत, जिसके अंदर प्योरिटी, हार्ट ऑफ प्योरिटी अपने आप आना शुरू होती है। अब राजशेखर कभी बैठते थे, अब अगर बातें होने लगे तो उठने का टाइम नहीं है, तो ये बात दूसरी, लेकिन सुनना इंटरेस्ट आता है, समझ। ऐसे ही सब बच्चे एक बार कल वो बहन जी वो ले आई उसमें कि प्रसाद चढ़ाने, चलो बच्चे लोग सब चारों जने कहते। तो फिर हमने कहा कि जानती हूँ प्रसाद की मीनिंग का है, प्रसाद का मीनिंग है कि हमारे पास तो ये स्वीट है, ये हम आपको ऑफर करते हैं, अब इसे अपना प्रसाद मतलब डिवाइन ग्रेस से इसको भर। तो जब वो डिवाइन ग्रेस से एवरी पार्टिकल ऑफ द स्वीट भर जाएगा तब वो डिवाइन प्रसाद बन जाएगा। आज के आदमी के हिसाब से तो उसमें फेथ भी नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि जैसे घूमने जा रहा है कहीं तीर्थ यात्रा में, एक गाड़ी जा रही है और वहाँ बहन जी ऐसा खाना बन रहा था, बीच पे खड़ी हुई है, मतलब कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, कोई उनका एम ऑफ लाइफ, एम है नहीं उनका। लेकिन फिर बाबू सिस्टर में बाबू महाराज ने कहा एम फर्स्ट एम, एंड ये नहीं कि डूइंग, फिर डूइंग चलो, रिमेम्बर इफ यू आर रिमेम्बरिंग इट देयर इज नो डूइंग। It means हाँ, after first we begin to remember him, but automatically because system is said was natural way of the realization, तो थोड़े दिन में अपने आप हार्ट कहने लगता है, जैसे इन्वॉल्व हो जाओ किसी वर्क में तो हार्ट एकदम से क्रेविंग जैसे आती है, वो बाबूजी महाराज ऐसा लगता है जैसे उसने बाबूजी महाराज को पकड़ लिया। तो वो रिमेम्बरेंस और तो सहज मार्ग की रिमेम्बरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस। वो डूइंग्स में आता है, ये ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि ये कनेक्टेड है और वो हमसे कनेक्टेड है, हम करें या ना करें। फिर मैं बाबूजी महाराज से कहा जी बाबूजी महाराज कोई लिटरेचर हमने नहीं, भक्त के बारे में पढ़ा, मीरा ने ऐसी भक्ति करी, कबीर ने ऐसी भक्ति करी, ये तो हमको मालूम है और कोशिश करते हैं जैसे नकल करने की बाबूजी, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं। आप लिटरेचर अगर पढ़ेंगे तो भी हमको नहीं मालूम। ये बाबूजी महाराज ने कहा कि नो नेसेसिटी फॉर रीडिंग, बी प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल हैं
तो आपको मीनिंग नहीं, तब आपको उसकी रियलिटी मालूम। तो उस दिन से फिर हमने कभी सोचा नहीं कि हम पढ़े नहीं, हम लिखे नहीं, ऐसे कभी हमारे मन में कोई विचार नहीं आया। लेकिन जो बाबूजी ने पढ़ाया, जैसे ट्रांसमिशन के द्वारा उन्होंने हमें सब पढ़ाया, वो हमको सब रिमेम्बर, सब मालूम। अब उस किताब में ना तो कुछ लिखा है, ना उसमें वर्डिंग्स हैं, ना उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किताब हमें मालूम। उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा, बस अपने आप आता है। इसके बाद जैसे फर्स्ट पास करा तो सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ऐसे अगर एक एक उससे आगे बढ़े तो अपने आप ये लगता है ये करना शुरू कर दो। लास्ट में बहुत मेहनत पड़ती है। तो हमने बाबूजी से कहा, बाबूजी कबीर ने अपने आप कैसे इतना करा होगा? तो बाबूजी महाराज ने कहा कि जैसे तुम्हें कंडीशन में लिखा है, कंडीशन में हम लिखते हैं कि बाबूजी महाराज हमें ऐसा लगता है कि कोई कंडीशन जो आने वाली वो बार बार सामने आती और फीलिंग के साथ आती, तो फिर मन क्या कहता है कि जिसने जो प्रेजेंट है उसको छोड़ो, ये जो आती है इसको लिखो। उस फीलिंग को लेके अपने में जब डाउन होना शुरू होते हैं तो वो फीलिंग फिर हमारी एक कंडीशन बन जाती है और हम आपको लिखते कि हमारी कंडीशन। बोले यही इसी से वो कबीर से, कबीर का कोई गुरु नहीं था। तो सहज जो सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो कि उनसे जुड़ा हुआ है, और वो भी सिस्टम हमने इसमें लिखा है कि व्हाट इज सहज मार्ग। ये कोई रास्ता नहीं है कि तुम इस रास्ते चले जाओ। जैसे गॉडली रीजन से गॉडली पावर लेके ये राम एंड कृष्ण इनका अवतार हुआ, ऐसे ही लाला साहब जी कहते हैं कि अंतिम जो जहाँ से सृष्टि आई है, ये दुनिया का वो सृजन हुआ है, उस शक्ति से उन्होंने प्रेयर करके उस शक्ति को नीचे उतारा। तो जो शक्ति इस रास्ते से आई, तो वहाँ तक तो गॉड रियलाइजेशन था। गॉड रियलाइजेशन के आगे कोई जानता ही नहीं था, न मीरा, कबीर ने बस इतना लिखा आगे है लेकिन हम नहीं जानते। दिस इज द एंड बट आई एम स्लीप। लेकिन बाबूजी महाराज का ये कि वो रास्ता जो बना है, क्योंकि वो उनसे लॉर्ड राम और कृष्णा से जुड़ा था, वो गॉडली रीजन से, और ये है अंतिम सत्य भूमा, जहाँ से सृष्टि का होल सृष्टि की रचना हुई, वहाँ पे जुड़ा हुआ। तो ये रास्ता जहाँ से बाबूजी महाराज उतरे हैं, वही रास्ता सरल। आप बाबूजी से चिपक जाएंगे तो जहाँ से वो उतरे हैं वहीं ऊपर चलते चले जाएंगे, क्योंकि वही रास्ता है आने का और वही रास्ता जाने का, वो सहज मार्ग। सिस्टर बाबूजी ने सबको लाइक वक्त मीरा कबीर वो सबको भी ले गया सिस्टर? वो नहीं ऐसा, I mean it's a stupid question, it is nothing to do with us, but नहीं, उसमें बाबूजी महाराज ने बताया एटिकेट होता है। एटिकेट जैसे पॉइंट यू, हमने बाबूजी महाराज को लिखा कि बाबूजी महाराज इतना आनंद है कि आप हर उससे तो आप हमें झट 2-3 दिन में निकाल देते, लेकिन आज हमारी ये आपसे प्रार्थना है कि इसमें हमें कुछ दिन दे दीजिए, बहुत वो है। तो बाबूजी ने जवाब में बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने कहा तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया, मेरा धर्म मैं शिक्षा देने आया हूँ, ये कहता है कि तुम्हें ऊंचे ले लो, और तुम्हारा मन जो है उस आनंद को पकड़े, वो नीचे रहना चाहता है। तो बच्चे का मन रहे
ये भी मेरा मन है, और अपना धर्म भी कम ना हो, ये भी मैं चाहता हूँ। फिर एकदम दूसरी लाइन लिखी, लाला साहब ने मुझे तरकीब बताई है। वो कौन तरकीब है? मन दो दो मुख है उसके, एक नीचे जो दुनिया का काम करता है, एक वो जो भगवान के पाने के लिए बना। तो बोले मैंने जो ऊर्ध्वमुखी मन था उसको तो ऊपर ले गया, और जो नीचे दुनिया का मन था उसको उस आनंद भोगने के लिए छोड़ा। Yeah, yes. उस आनंद को फिर एकदम हमने लिखा, बाबूजी महाराज अब यही चीज है। मीरा अगर उस आनंद को छोड़ दे तो फिर बाबूजी की शरण हो सकती, बाबूजी ले जा सकते उससे आगे। लेकिन कोई लोग ऐसे जो जैसे कबीर ने छोड़ दिया, कबीर ने ऑफर कर दिया अपने को, तो कबीर का है, लेकिन मीरा उस आनंद को नहीं छोड़ पाई। अगर आप नहीं छोड़ पाए तो फिर आप उसी आनंद में पड़े रहे। लिबरेटेड सोल्स के मतलब का जो आनंद उनको वहां पे है उससे वो निकलना नहीं चाहते। इसलिए बाबूजी महाराज ने जब हमको उसकी बाउंड्री वॉल से निकाला तो बाबूजी महाराज ने मतलब ये दिखा भी दिया कि हाँ आनंद है, लेकिन उससे आगे ले जाके ये भी बताया कि इससे आगे भी कुछ। ये शर्मा सिस्टम कुछ आसान नहीं है, लेकिन ले जाने वाला इजी, इतना इजी ले जाता है कि कभी ये पता ही नहीं लगता है। पहले इतना मूर्ति पूजा करते, कितनी मेहनत करते थे, रात के 2 बजे उठते थे, नहाओ, झाड़ू लगाओ ठाकुर जी के यहाँ, बर्तन मारो, भोग के लिए तैयार करो, कितना काम करते थे। वो अब तो कुछ नहीं, सुबह सुबह खाना खा लो, सो जाओ, और दिन भर कोई आए तो बात कर ली। अच्छा, उसमें कहा है जैसे डूइंग्स है। अगर मान लीजिए आज हम बीमार हो गए तो आज पूजा नहीं कर सकते ठाकुर जी की, तो मन में पीड़ा होती थी कि आज हमने ठाकुर जी की पूजा नहीं की। और इसमें ये पता ही नहीं लगता कि हम बीमार थे, अच्छे थे या वो थे, कैसे थे। तब आता है कि बाबूजी महाराज ने कहा कि जैसे बहुत दर्द थे बाबूजी महाराज, ऐसा टाइम आएगा जब हम आपको याद भी नहीं कर पाएंगे, और उस समय अगर हमारी डेथ आई तब क्या करें, हम तो आपको याद नहीं कर सकते। तो बाबूजी महाराज ने कहा होल टाइम तुमने मुझे रिमेम्बर किया, तो ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि जब तुम न रिमेम्बर कर सको तो मैं तुम्हें। अम्मा हमारी ना, अच्छा अम्मा के कहने में जैसे बिल्कुल रियलिटी हमें आज भी याद है। अम्मा बोली है मैं नहीं कर सका, और तुम लेने आओगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बहुत बिल्कुल माँ की तरह। हाँ, तुम ये वो उनके दूत आते हैं, वो ले जाते, वो ले जाते, हम किसी के जरूरत नहीं है। तुम लेने आओगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अरे नहीं अम्मा, ये कैसे हो सकता है? अपनी अम्मा को लेने हम नहीं आएंगे, हम लेने आएंगे। आज डेथ के समय हम आपको बताएं कि ये पता ही न लगा कि जैसे किसी की डेथ हो गई। वो देखो भाई, अम्मा का कहना हमने पूरा। किसी बड़ी बहन थी हमारी, वो बहुत बचपन से इतनी साधना मतलब करती हुई थी, गीता पाठ ये है, जब तक ये सब कर नहीं लेती थी वो खाना नहीं खाती थी। तो उनकी ससुराल में 2 बजे खाना खाया जाता था, तो 2 बजे तक वो अपनी खाना बनाए के 2 बजे तक अपनी पूजा सब खत्म कर दी। तो जब वो लोग खाना खाते थे उसके पहले वो कुछ नहीं खाते। तो
तो जब वो आई तो शुरू बचपन से ऐसे कर रही थी, और तब तो उनके 3 बच्चे सब हो चुके थे, 3-4, 3 लड़की, 3 लड़की, एक लड़का एक 4 लड़का। लड़की। तो अब बहुत तबीयत, उनका हार्ट अटैक, उनको दूसरा हार्ट अटैक पड़ा। तो वो यहाँ थी हमारे पास लखीमपुर, बाबूजी आए मास्टर साहब थे, तो पिताजी बाबूजी को ले आए कि वो लड़की आई, उठ तो नहीं सकती लेकिन वो भी चाहती कि हम आपके दर्शन करें। बाबूजी आए तो जीजी ने कहा, कस्तूरी कहती जीजी ये चीज बहुत अच्छी, लेकिन मैंने पूरी टाइम वो करा तो मुझे ये लगता है कि कहीं अंत समय ऐसा ना हो कि हम अपना जो हमने करा है वो भी सब भूल जाएं। तो बाबूजी ने कहा चाहती हो तुम? उन्होंने कहा चाहते तो हम कस्तूरी की इसलिए, क्योंकि कस्तूरी जो करती है वो बहुत अच्छी से करती है, और हमने उसकी वो भी पढ़ी है, चिट्ठी भी पढ़ी है, वो बहुत अच्छी है, आपका जवाब भी पढ़ा। लेकिन हमारे अभी अंदर कहीं ना कहीं पुरानी जो करते हैं उससे हमारा वो, तो बोले कि अच्छा हम उसको तोड़ देंगे, हमसे दोबारा वो अलग कर देंगे। तो अलग कर दिया। बोले अब ये देखो, अब तो मैं है लगाओ। नहीं बाबूजी महाराज, अब तो नहीं लगाओ, अब तो बस यही है कि जैसे कस्तूरी कहती है कि आपको बहुत, आप सबको बहुत प्यार करते हैं। आप देखते उसके बाद फिर वो चली गई फिर बीच में उनकी अभी फिर वो तो थर्ड हार्ट अटैक पड़ गया। तो फिर वो उनको हम लोग लखीमपुर थे, वो लखनऊ लाए इटावा से। तो लखनऊ में 2-3 दिन में उनकी डेथ हो गई। तो मालूम नहीं था हम लोग को कि डेथ हो गई। पानी आया, बाहर सोते थे आंगन में, तो हम और केसर अपनी खाटें लेके भीतर चल रहे थे, सब लोग अपनी खाट खींचे, इसे बरामदे थे ऐसे खींच रहे। एकदम से हमने देखा कि खूब रोशनी हुई, उसमें जीजी आए और एकदम से चली गई। हमने इनसे कहा मालूम था जीजी की डेथ, और ये दिखाने के मारे बाबूजी महाराज ने कि देखो इसने छोड़ दिया तो इसकी वो हमने पूरी कर दी। बस फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद वो आ गया टेलीग्राम। तो फिर बाबूजी महाराज आए, तो बोले, हमने कहा बाबूजी महाराज जैसा देखा, बोले भाई अगर प्रूफ न देते तो हमारा काम मानता कौन? बाबूजी बहुत प्यार करते, लेकिन हम लोग कल हमको थोड़ा इनको देख के बहुत वो हुआ कि इनके भी सब काम बाबूजी ने बनाया, अगर दुनिया के लिए के लिए तो भी। और जैसे